Good evening. So, today we are going to discuss the editorial of The Hindu and the Indian Express. So, today, we will discuss the most important articles, and the remaining articles we will discuss on our weekends or in our class lectures. Okay, so don't worry, I will not leave any important article. I will cover every important article in one or the other way, be it in class lecture, be it during our weekdays or the weekend. Okay. So focus first on the articles that are very important from our exam point of view. So this is the first article that we are going to discuss. So it is the topic of international relation topic. So this topic, or there was a crisis in the Caucasus. Now Caucasus is a region between Black Sea and the Caspian Sea. This is the Caspian Sea, and here there would be Black Sea. Okay. So here there was a fight going on between Armenia and Azerbaijan. I think I am audible to all. Okay, thank you. So a war was going on. There was ceasefire violation, and these two countries, like Pakistan and India, they are fighting over the region. This is the bone of contention between Armenia and Azerbaijan. The area of Nagorno and Karabakh. Nagorno and Karabakh is like the POK. ठीक है, Pakistan occupied Kashmir. ठीक है, Nagorno Karabakh is a bone of contention, is a region where Armenia and Azerbaijan, fighting with each other here. So the conflict of Nagorno and Karabakh is not a new issue. It is a decades old issue. The region was largely populated by Armenians, the ethnic Armenians, but the control is under Azerbaijan. जो आर्मेनियंस हैं, उन जो मेजर पॉपुलेशन है वो यहाँ पे भी है. इस रीजन में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? जो आर्मेनियंस है, बट दिस रीजन इज कंट्रोल्ड बाय अजरबैजान. तो अंडर द सोवियत यूनियन, ठीक है, यस. So we are going to discuss the fight or the crisis between Armenia and Azerbaijan. There is a crisis in Caucasus. Now Caucasus is a region between Black Sea and the Caspian Sea. This is the Caspian Sea, and the whole region, this region is the Caucasus region. Now Caucasus are the mountains. Caucasus क्या है? ये माउंटेन्स रेंज है. ठीक है, और यहाँ पे इस रीजन के लिए जो फाइट हो रही है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ये रीजन कौन सा है? नगर्नो एंड
Karabakh जो रीजन है, it is like the POK for Pakistan and India. Here Azerbaijan, controlling this region, but the population here is mostly the ethnic Armenians. Okay? It is largely populated by ethnic Armenians. Now, let's just check its background or the brief history. Under the Soviet Union, जो ये रीजन है Nagorno and Karabakh, it was a autonomous province. Autonomous means that there was a self-government, and that was the part of Azerbaijan Republic. ये अजरबैजान तो था. दिस इज सिमिलर टू हांगकांग. जैसे हांगकांग है तो चाइना के अंडर, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट है, ये अपने डिसीजन खुद लेते हैं. बट इन 1988 व्हेन जो सोवियत पावर वाज रिसीडिंग, जब ये सोवियत पावर ये इसमें डिसइंटीग्रेशन होने के चांसेस बढ़ रहे थे, द रीजनल असेंबली इन द नागोर्नो काराबख वोटेड टू ज्वाइन आर्मेनिया. ठीक है, अभी इनको पता चल गया कि सोवियत यूनियन में जो सोवियत पावर है इसमें क्या हो सकता है, डिसइंटीग्रेशन हो सकती है. ठीक है, तो उसके बाद ये एक सिमिलर केस था जैसे इंडिया में क्या होनी थी, पार्टीशन होनी थी, पाकिस्तान और इंडिया में डिवीजन होनी थी, ये पार्टीशन होनी थी. जो इसमें अभी पाकिस्तान के जो लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनको ये था कि मैक्सिमम एरिया किसके अंडर आए, पाकिस्तान, और इंडिया को ये था कि मैक्सिमम जो एरिया है वो किसके अंडर में आए, जो इंडिया के अंडर में आए. फॉर एग्जांपल देयर वाज इशू ऑफ हैदराबाद. ठीक है, हैदराबाद किसके अंडर पहले जाने वाला था, पाकिस्तान के अंडर जाने वाला था, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट्स के कारण हैदराबाद हमें मिल गया. ठीक है, और यस यस वी विल डिस्कस. जस्ट मैं ब्रीफ एक मैं बता रहा हूं आपको भी सिचुएशन क्या थी तब. ठीक है, दिस वी विल डिस्कस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है, सो यहाँ पे स्ट्रेटेजी किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी. उन्होंने इस रीजन को पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने दिया. सिमिलरली यहाँ पे केस था कि जो रीजनल असेंबली थी नागोर्नो काराबख, दे वांटेड टू ज्वाइन आर्मेनिया, ये आर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे, बट यहाँ पे क्या हो गए, एथनिक क्लैशेस हो गए, और इस बात का फायदा उठाया अजरबैजान के लीडर्स ने, एंड दोनों के बीच में एक फाइट भी हुई. देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान. ठीक है, आफ्टर द सोवियत डिसइंटीग्रेशन. पहले क्या थी, सोवियत यूनियन थी, यूएसएसआर जिसको हम बोलते हैं. उसके बाद में 1991 में डिसइंटीग्रेशन होगी और एक बन गया रशिया, और जो बाकी की जो कंट्रीज थी वो सेपरेट होगी. एक यूनियन नहीं रही, सोवियत यूनियन नहीं रही, ये अलग अलग कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल गई. तो यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में फाइट हुई, वॉर हुई, एंड इन दिस वॉर अजरबैजान वॉन. ठीक है, ये जीत गए और इनके अंडर में एरिया आ गया नागोर्नो काराबख. तब से लेके आज तक इनके बीच का जो डिस्प्यूट है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है. जैसे जम्मू कश्मीर का इशू है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, सिमिलरली नागोर्नो काराबख का इशू है आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच. ये एरिया लार्जली क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स है, फॉरेस्ट हैं, बट ये क्या है, एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान. इनके बीच में सीज फायर मीन्स के दोनों तरफ से कोई भी गोलाबारी नहीं करेगा, कोई वॉर डिक्लेयर नहीं करेगा. सीज फायर वाज रीच इन 1994, बट जिन्होंने रेबल्स किया था इस एरिया में, ठीक है, स्पेशली जो क्या थे, आर्मेनियंस थे, इनको सपोर्ट किसकी थी, आर्मेनिया की प्लस रशिया की. ठीक है, आर्मेनिया और रशिया की सपोर्ट से इन्होंने अपना डिफेक्टो मतलब होता है कोई रियल रूल. ठीक है, जो अपना रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया. जो रेबल लीडर्स थे
एंड दे एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस टू आर्मेनियन बॉर्डर, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये सारा रीजन किसके पास था, आर्मेनिया के पास था। और ये जो ब्राउन वाला एरिया है ना, this area was also of Armenia, but now it is controlled by अजरबैजान, ठीक है। अजरबैजान इस जो ब्राउन वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको भी अभी कौन कंट्रोल कर रहा है, अजरबैजान कंट्रोल कर रहा है। तो इनके दोनों के बीच में ये सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस थी। बट इस बार जो क्राइसिस हुआ, इसमें सबसे यूनिक चीज क्या है, ये क्राइसिस तो इनका डेकेड्स ओल्ड है। इस बार जो इशू है कि इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इस बार दोनों को एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रही है। और ये भी हो सकता है कि इन दोनों की फाइट एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें बाकी की कंट्री जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। क्योंकि अब देखो यहाँ पे अजरबैजान के साथ बॉर्डर किसका लगता है, रशिया का, ठीक है। और यहाँ पे ये जॉर्जिया है, यहाँ पे क्या है, टर्की है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देखो, ये है हमारा जो आर्मेनिया, ये है रीजन, ठीक है, जिसपे डिस्प्यूट चल रहा है अभी। एंड दिस इज अजरबैजान, दिस इज रशिया, जॉर्जिया, एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट party is Turkey. Now, recently, about last week, Russia mediated ceasefire. रशिया ने बोला दोनों को, आर्मेनिया और अजरबैजान को, इन दोनों कंट्री के साथ रशिया के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं। अच्छा इनके साथ जो ट्रेड कर रहा है, अच्छे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हैं इनके साथ, दोनों कंट्रीज के साथ। तो इसलिए इसने मीडिएट किया, ठीक है, आफ्टर डेज ऑफ फाइटिंग। बट ये जो ट्रूस अचीव किया था कि दोनों की तरफ से कोई भी फायर नहीं करेगा, इट क्रम्बल्ड इमीडिएटली अमिड अ ब्लेम गेम। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि पहले इसने फाइटिंग की, इसने फायरिंग स्टार्ट की, और दूसरा बोल रहा है कि उसने पहले फाइटिंग और फायरिंग स्टार्ट की, ठीक है। बट यहाँ पे जो अजरबैजान है, ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बिहेव कर रहा है, बिकॉज इट हैज द बैक ऑफ टर्की। टर्की सपोर्ट कर रहा है किसको, ओके, मैं करता हूं। ये जो फाइट हो रही है, ये फाइट किसके बिटवीन हो रही है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हो रही है। एंड रशिया हियर इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ मीडिएटर, वो एज ए मीडिएटर रोल कर रहा है। क्यों रशिया क्यों चाहता है, क्योंकि रशिया के दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन है, ठीक है। बट यहाँ पे जो इस चीज का बेनिफिट कौन उठाना चाहता है, इसका बेनिफिट उठाना चाहता है टर्की। टर्की इज सिमिलर टू हियर चाइना। सपोज देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जो चाइना है, ठीक है, चाइना क्या करता है, इन दोनों के डिस्प्यूट में इंटरफेयर करता है। आई थिंक किसी का माइक ऑन हो गया है, प्लीज ऑफ करो अपने माइक को। ओके 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 ओके, कौन कर रहा है प्रेजेंट अभी, जस्ट अ मिनट। जुजार, हाँ जी हाँ जी, माइक, हाँ जी, सत श्री अकाल, माइक बंद करो अपना, हाँ जी, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं हम यहीं से। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इशू है वो दो किसके बीच है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। और यहाँ पे इशू सबसे बड़ा क्या आ रहा है, रशिया इशू एक फेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि रशिया के जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे हैं दोनों कंट्रीज के साथ, आर्मेनिया के साथ भी और अजरबैजान के बीच में, ठीक है। बट जो ट्रूस इन्होंने अचीव किया था
कि कोई भी फायर नहीं करेगा, कोई भी सीज फायर को वायलेट नहीं करेगा, इट crumbled immediately amid a blame game. Both are playing the blame game. Now, why Russia is, kind of worrying about this crisis? Because Azerbaijan got the support of Turkey. ठीक है, टर्की की सपोर्ट क्यों कर रहा है, अजरबैजान की सपोर्ट क्यों कर रहा है टर्की? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टर्की के देखो यहाँ पे टर्की का बॉर्डर किसके साथ लग रहा है? आर्मेनिया के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका आपस में थोड़ा बहुत जो डिस्प्यूट रहता है यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है। सेकंड थिंग, जो इसके रिलेशन रहे हैं ना सिंस वर्ल्ड वॉर वन, टर्की और आर्मेनिया के जो रिलेशन रहे हैं वो बहुत ही खराब रहे हैं सिंस वर्ल्ड वॉर वन, क्योंकि आर्मेनिया ने साथ दिया था ओटोमन अंपायर का, और टर्की ओटोमन जो अंपायर के जो रूलर थे तब उनके ऑलमोस्ट क्या था, खिलाफ था। और यहाँ पे ये क्या था, एक इशू क्रिएट था, इनके जो रिलेशन थे वो शुरू से अच्छे नहीं है, एंड टर्की वांटेड टू इंटरफेयर इन सदर्न कोकेशस। ये वाला जो एरिया है ये क्या है, सदर्न कोकेशस वाला एरिया है, टर्की इसमें इंटरफेरेंस चाहता था। अभी उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई आर्मेनिया और अजरबैजान की फाइट से, ठीक है। सो सबसे बड़ा भी इशू क्या है कि ये इतना डेंजर क्यों बन रहा है? ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरवेंशन। ये जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन हो रही है टर्की और रशिया की, तो इस वजह से जो सिंपल जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, इट मे get converted into a full-fledged war between two or more countries. So it is a threat to peace in the region. Now, I already told you that Azerbaijan and Turks share ethnic and linguistic bonds. ठीक है, अजरबैजान के और टर्की के रिलेशन काफी अच्छे हैं, एंड प्री सोवियत अजरबैजान was basically the ally of Ottomans. ठीक है, अजरबैजान इनका अलाई था और आर्मेनिया, ठीक है, वो अपोज कर रहा था। तो यहाँ पे एक इशू क्या था कि रीजन क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि रीजन क्या है कि इंटरफेरेंस क्यों कर रहा है टर्की। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्की वांटेड टू एक्सपैंड इट्स जियोपॉलिटिकल रीच टू फॉर्मर ऑटोमन रीजन। जो फॉर्मल ऑटोमन रीजन कौन सा है? ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये जो थोड़ा सा ईरान वाला, आर्मेनिया वाला, जॉर्जिया वाला, ये फॉर्मल जो ऑटोमन जो अंपायर था यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन से पहले, तब का जो रीजन है, इसमें ये अपनी इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहता है। सेकेंड, इट वांटेड द अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू साउथ कॉकेशस जो रीजन है। नो, टर्की हैड अ बैड रिलेशनशिप विद आर्मेनिया, बट अभी सबसे बड़ा इशू क्या है टर्की के लिए? क्या इशू है? जो आर्मेनिया है, इट इज अ मेंबर ऑफ रशिया लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किसने क्रिएट की थी? रशिया ने क्रिएट की थी, CSTO, इसका ये मेंबर है। और अगर अजरबैजान पे कोई भी अटैक करेगा तो अंडर आर्टिकल 4 ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, रशिया हैव टू हेल्प आर्मेनिया। तो आर्मेनिया की हेल्प इसको करनी ही पड़ेगी, बिकॉज आर्मेनिया इज द CSTO मेंबर। ऑन द अदर हैंड, रशिया का मिलिट्री बेस भी है आर्मेनिया में, सो आर्मेनिया हैज मोर वेट एज कंपेयर टू अजरबैजान। अजरबैजान के साथ इसके ट्रेड तो चल रहा है, बट आर्मेनिया के साथ इसके सिक्योरिटी रिलेशन भी है, ठीक है, इसका जो डिफेंस सिस्टम है वो भी प्रॉपरली यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व है। तो अगर फाइट होती है तो रशिया को हेल्प करनी पड़ेगी आर्मेनिया की। बट अभी यहाँ पे इशू क्या आ रहा है? अभी जो टर्की है, टर्की मेंबर है नेटो का। नेटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि नॉर्थ अटलांटिक में जितनी भी
जो कंट्रीज हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसको बोलते हैं नेटो, ठीक है। और यहाँ पे अगर टर्की पे कोई अटैक होता है तो बाकी ये नेटो वाली कंट्रीज हैं, इनको टर्की का साथ देना पड़ेगा। तो हो सकता है एक बहुत बड़ी एक वॉर भी छिड़ सकती है इस इशू के कारण, बट चांसेस आर लेस। व्हाई? बिकॉज रशिया इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन conflicts of Syria, Ukraine, Libya. We will discuss in some other lecture that why Russia is involved in Syria, Ukraine or Libya. ठीक है? So it may not open another front. ठीक है? So ये रशिया के साथ rather रशिया टर्की के साथ या अजरबैजान के साथ ज्यादा फाइट करने में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 फ्रंट पे पहले भी ही जो फाइट कर रहा है। सो ही एम्फेसाइज्ड न्यूट्रलिटी। तो आप अब सभी को समझ में आया कि रशिया क्यों एफर्ट्स कर रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो क्राइसिस है ये वॉर में कन्वर्ट ना हो अभी, और कोई भी सीज फायर की वायलेशन ना करे, क्योंकि रशिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ आर्मेनिया, और अजरबैजान के फेवर में कौन है? टर्की है, एंड टर्की इज ए मेंबर ऑफ नेटो। तो नेटो वाली कंट्रीज भी रशिया के अगेंस्ट हो सकती है। सो रशिया इन मॉस्को होल्ड टॉक्स फॉर द ट्रूस। ट्रूस मतलब होता है कि पीस क्रिएट करो दोनों साइड पे, ठीक है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? बोथ साइड्स शुड अंडरस्टैंड द वॉलाटाइल सिचुएशन, कि जो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन अभी है, एंड दे शुड कॉल ऑफ द हॉस्टिलिटीज, कि दोनों एक दूसरे की तरफ क्या है, बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है, ठीक है, अग्रेसिव मैनर से ये एक दूसरे को फाइट करने के लिए निकल रहे हैं, एंड दे शुड रिजॉर्ट टू सीज फायर एंड शुड ओपन अप डिप्लोमेटिक चैनल्स, ठीक है। क्योंकि और दूसरी चीज ये है कि डिप्लोमेटिक चैनल, डिप्लोमेसी किस किस के बीच में होगी? एक तो अजरबैजान है, एक आर्मेनिया है, और एक काराबख वाला जो रीजन है जहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, रेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे एथनिक वायलेंस हो रही है। तो एथनिसिटी आप समझते हो कि फॉर एग्जाम्पल म्यांमार में जो रोहिंग्यास थे, ठीक है, म्यांमार क्या है, एक बुद्धिस्ट डोमिनेंट कंट्री है, बुद्धिज्म वहां पे सबसे ज्यादा फॉलो होता है, बट यहाँ पे एक कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वहां पे वो, और यहाँ पे कौन थे वो? रोहिंग्यास। तो यहाँ पे इन्होंने इनकी एक्स्ट्राडिशन और फोर्सफुली इनको अपनी कंट्री से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इंटरनेशनली ये चीज को काफी ज्यादा कंडेमन भी किया गया, ठीक है। ऑन्ग सैन सू की जो इनकी मेन लीडर है म्यांमार की, तो उसको काफी ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स के लिए काफी ज्यादा कंडेमन भी किया गया उनको। बट यहाँ पे यही चीज है कि जो यहाँ पे लोग हैं अजरबैजान में वो डिफरेंट है, उनकी एथनिसिटी डिफरेंट है, और यहाँ पे जो दूसरे हैं हमारे आर्मेनिया वाले, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंपेयर कर सकते हो ना कि अगर हमारे जो काफी ज्यादा जो हिंदू फैमिलीज होंगी वो कहाँ पे होंगी? पाकिस्तान में होंगी, ठीक है, और सिमिलरली जो मुस्लिम्स है वहां पे इंडिया में है, ठीक है। बट यहाँ पे जो नेचर है हमारी कंट्री का, इंडिया का, वो क्या है? सेकुलर है। स्टिल देयर आर इंसिडेंसेस ऑफ ethnic violence, but still as compared to Pakistan our country is much much better, ठीक है। तो यहाँ पे भी एथनिक वायलेंस बहुत ज्यादा होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एथनिक वायलेंस हो रही है नगर्नो काराबख जो एरिया है। तो यही चीज हम क्या एग्जाम में हम क्या लिखेंगे? that both sides should understand the volatile situation and call off the hostilities, and they should resort to ceasefire and should open up diplomatic channels,
and there should not be any kind of ethnic violence in Nagorno-Karabakh area. So this should be the way forward. ठीक है. So next article is regard to Nobel Prize for Economics. ठीक है. Yesterday we discussed the Nobel Prize for Chemistry. ठीक है. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स. तो जो नोबेल प्राइज है ये किसने दिया था? मंडे को दिया. जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है साइंसेस की, उसने ये अवार्ड को जो कॉन्फर किया है ऑन पॉल आर मिलग्रम एंड रॉबर्ट वी विल्सन. ठीक है. ये दोनों क्या है? प्रोफेसर्स हैं. स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, अलग अलग डिपार्टमेंट है इनका वैसे तो इनको दोनों को ये अवार्ड मिला है. ठीक है. ये यूएसए से बिलोंग करते हैं दोनों. तो इस अवार्ड को पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं? नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स. बट इसका एक्चुअल नेम क्या है? स्वेरिगस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस. ठीक है. तो ये प्राइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अल्फ्रेड नोबल ने एस्टेब्लिश नहीं किया था. अल्फ्रेड नोबल ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, ठीक है, और प्लस आपका जो पीस प्राइज है, तो ये सम ऑफ द ये प्राइजेस उसने एस्टेब्लिश किए थे. बट ये प्राइज बाद में एस्टेब्लिश किया गया, स्वेरिगस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस. ये जो स्वेरिग रिक्स बैंक है ये क्या है? सेंट्रल बैंक है स्विट्जरलैंड का. ठीक है. स्विट्जरलैंड का जो सेंट्रल बैंक है ये इसके लिए काफी ज्यादा जो पैसा है वो प्रोवाइड करता है, जो मनी होती है. तो इसमें कितना पैसा दिया जाता है? अबाउट 10 मिलियन क्रोनर अवार्ड मनी. क्रोनर वहां की क्या है? मतलब करेंसी है. तो ये रफली कितने में होता है? 8.33 करोड़. ठीक है. रफली ये 8-8.5 करोड़ का ये बनता है. और ये इस मनी को दो लोग शेयर करेंगे, पॉल आर मिलग्रम एंड रॉबर्ट विल्सन. तो हमारे लिए ये इनके नेम्स इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है भी किस चीज के लिए इनको अवार्ड मिला है. बिकॉज यूपीएससी वुड नॉट आस्क द नेम्स, दे वुड नॉट आस्क जनरली द फैक्चुअल क्वेश्चंस, बट दे मे आस्क क्वेश्चन on this topic because the Milgram and Wilson were awarded the Nobel Prize for Economics for improvement to auction theory and invention of new auction format. अभी ये auction theory क्या है जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है? आप सभी को पता होगा कि ऑक्शंस क्या होते हैं. ठीक है. देखो आपने देखा होगा कि कई बार कोई पर्सन क्या हो जाता है? बैंकरप्ट हो जाता है. उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है? ऑक्शन किया जाता है. फॉर एग्जांपल या फिर कोई पर्सन बैंक का जब लोन नहीं चुका पाता तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देती है? ऑक्शन कर देती है, उसको सेल करती है, उससे जो पैसा है उससे अपना जो लोन दिया है वो रिकवर करती है. बट ये ऑक्शन इतना सिंपल नहीं होता. अलग अलग, क्योंकि पहले तो जो ऑक्शन होता था वो सिंपली प्रॉपर्टी पे होता था. बट फॉर पास्ट 2-3 डेकेड्स जो ऑक्शन में बहुत सारे क्या आए हैं? चेंजेस आए हैं. क्यों? क्योंकि ऑक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिस्कवरी ऑफ प्राइस. क्योंकि जब भी आप किसी ऑक्शन में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि उस जो कमोडिटी है, जो सर्विस है, उसका कितना प्राइस होना चाहिए. ठीक है. और आप कितनी उस पे बोली लगाओगे, हाउ यू वुड बिड ऑन दैट कमोडिटी और दी सर्विस. तो इसके लिए उन्होंने न्यू फॉर्मेट्स क्रिएट किए हैं पॉल और विल्सन ने. एंड फॉर दिस इन्वेंशन बोथ वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पे आपने समझना है कि ये ऑक्शन थ्योरी क्या है. तो एक ऑक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि किसी प्रॉपर्टी पे ऑक्शन हो सकता है, या फिर कोई स्पेक्ट्रम है. ठीक है. स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कोई 2G, 3G, 4G टेक्नोलॉजी के लिए बैंडविड्थ चाहिए होती है. तो गवर्नमेंट क्या करती है? जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, बैंडविड्थ होती है, उसको सेल करती है इन द ओपन बिडिंग. मोस्ट ऑफ द केसेस ओपन बिडिंग होती है उनकी. ठीक है. इवन क्लोज बिडिंग भी होती है.
तो वहां पे जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको मैक्सिमम क्या दिया जाता है, जो उसको एलोकेट कर दिया जाता है जो स्पेक्ट्रम होता है। ये स्पेक्ट्रम किसके लिए हो सकता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए भी हो सकता है, टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है, और आपको हो सकता है पता जो 2G और 3G स्कैम्स हुए थे वो इसी वजह से हुए थे कि जो बिडिंग प्रोसेस थी उसमें बहुत कम ट्रांसपेरेंसी थी। और यहाँ पे एक चीज भी इंपॉर्टेंट है, अभी जो ऑक्शन होते हैं ना वो कार्बन एमिशन जो क्रेडिट्स हैं उनके लिए भी होते हैं। ये कार्बन एमिशन जो क्रेडिट्स हैं ये क्या होते हैं, आपको हो सकता है पता हो कि 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, ठीक है। किसने करवाई थी ये, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए हुई थी, पेरिस क्लाइमेट डील भी बोलते हैं क्योंकि 2015 में ये कहां पे हुई थी, पेरिस में हुई थी। तो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया कि अगर कोई पर्सन, जब कोई कंट्री रेदर बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस अमिट करती है और एक साइड पे दूसरी कंट्री है जो बहुत कम अमिट करती है, सपोज करो इनको बोला गया कि आपने 1000 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड अमिट कर सकते हो, बट ये कर रहे हैं 1100, ठीक है, 1100 टन कार्बन डाइऑक्साइड अमिट कर रहे हैं। तो दूसरी साइड पे कंट्री है फॉर एग्जांपल नॉर्वे, इनको बोला गया कि आप 400 टन कर सकते हो अमिट, बट ये कर रहे हैं जस्ट 300, ठीक है। तो यहां पे जो 100 टन का इनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने 100 टन कम किया है, तो ये क्या करेंगे, इस कार्बन एमिशन क्रेडिट को ये सेल कर देंगे। सपोज करो इस कंट्री को सेल कर दिया, अभी इन्होंने 1000 टन तो इनको अलाउड है और 100 टन का इन्होंने सर्टिफिकेट परचेज कर लिया, तो इनको एज सच कोई इशू नहीं होगा। ये क्यों किया गया, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होती है ना वो ओवरऑल पूरे अर्थ को इंपैक्ट करती है। अगर एक कंट्री बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, इसकी एमिशन कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस की, और दूसरी साइड पे एक कंट्री बहुत कम कर रही है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो इसको कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला जब तक ये कंट्री भी कंट्रोल नहीं करती। तो इस वजह से जो कम कर रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट दिया गया कि आप कार्बन एमिशन क्रेडिट सर्टिफिकेट दे सकते हो, सेल कर सकते हो। तो इसको यूज करके, इस मनी को यूज करके ये अपना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और भी ज्यादा इस एमिशन को, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली ये कंट्री भी कर सकती है। और देयर वाज एन आर्टिकल इन द न्यूज कि चाइना ने, क्योंकि इस बार UNFCCC की जो कन्वेंशन होनी थी वो नहीं हुई ड्यू टू कोविड 19 पैंडेमिक, तो इस बार चाइना ने बोला है कि बाय आई थिंक 2060 वो क्या करेंगे, नेट जीरो कार्बन एमिशन। अभी ये नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या है, नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब है कि जितना हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, उतने ही हम उसको अब्सॉर्ब भी करेंगे। अब्सॉर्ब कैसे करेंगे कि वो फॉरेस्ट कवर वगैरह इंक्रीज करेंगे। वी विल सी दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन एनवायरनमेंट आल्सो और इन दी करंट अफेयर सेक्शन आल्सो। सो ये थी ऑक्शन की प्रोसेस कि ऑक्शन बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है स्पेक्ट्रम में, प्रॉपर्टी में, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन क्रेडिट में, इवन पेंटिंग, बहुत सारी एग्जीबिशंस लगती हैं, वहां पे बहुत सारी कमोडिटीज होती है, ऑक्शन के लिए आती हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट पर्पस ऑफ एन ऑक्शन आल्सो डिफर्स विद द कमोडिटी। ऑब्वियसली पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट प्रोसेस होगा ऑक्शन का, स्पेक्ट्रम के लिए डिफरेंट होगा, पेंटिंग के लिए डिफरेंट होगा। इट entirely depend on the entity for which we are conducting the auction. So for example government is selling a spectrum। देखो दो तरह की बॉडी है, एक तो है गवर्नमेंट और एक है प्राइवेट बॉडी।
गवर्नमेंट बॉडी का जो मोटिव है वो कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि इसने प्रॉफिट भी देखना है और सोसाइटी का बेनिफिट भी देखना है। बट जो प्राइवेट एंटिटी है, मोस्ट ऑफ द केसेस दे सीक फॉर प्रॉफिट, ठीक है, दे सीक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देयर बिडिंग। तो यहां पे अगर सपोज करो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्राइस रखती है और हाईएस्ट बिडर को दे भी देती है, फॉर एग्जांपल इसने कोई स्पेक्ट्रम सेल किया, ठीक है, स्पेक्ट्रम को इसने बहुत ज्यादा प्राइस पे रखा और हाईएस्ट जो बिडर है उसने खरीद भी लिया इसको। बट यहाँ पे वो अभी हाईएस्ट बिडर ने क्या करना, प्रॉफिट कमाना ना, उसने कोई दान पुण्य का काम तो यहाँ पे करना नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो स्पेक्ट्रम उसको महंगा मिलेगा तो जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो भी तो हायर प्राइसेस पे मिलेंगी, ठीक है। सो जो इसका नुकसान किसको होगा, जो पूरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इट में गेट एक्सक्लूडेड। तो ये एक्सक्लूड हो सकता है कि इसको जो इंटरनेट के सर्विसेज हैं वो ना मिल पाए क्योंकि बहुत महंगी हो जाएंगी। सो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट एक तो ये काम कर सकती है, अगर इसको जहाँ पे ज्यादा पैसा मिला है तो उसको पूरेस्ट जो सेक्शन है उनको किसी तरह की कोई सब्सिडी दे सकते हैं, या फिर ये जो बिडर है इसको कम प्राइस में दे सकते हैं और इनके साथ कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आप पूरेस्ट जो सेक्शन है उसको एक्सक्लूड करोगे। दिस इज नोन एज ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ब्यूटी कॉन्टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई गर्ल्स आती हैं, रैम वॉक करती हैं और वहां पे कुछ अनाउंस किया जाता है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट का मतलब ये था कि यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ ये नहीं देखती थी कि कौन सबसे ज्यादा पैसा देगा, वो ये देखती थी कि जिस कमोडिटी की हम ऑक्शन करने जा रहे हैं उसको सबसे ज्यादा ब्यूटीफुली कौन यूटिलाइज करेगा, जिससे मैक्सिमम पब्लिक का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, उनका भला हो सके। तो इसको बोलते थे ब्यूटी कॉन्टेस्ट। बट अभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या होने लगी थी, लॉबिंग होने लगी थी, बहुत ज्यादा एक दूसरे की सिफारिशें पढ़नी मिनिस्टर्स की, ठीक है, बहुत ज्यादा करप्शन होना स्टार्ट हो गया था ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, बिकॉज देयर वाज मच मोर सब्जेक्टिविटी एंड देयर वाज नॉट एनी काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। सो नाउ द गवर्नमेंट इज यूजिंग द बिडिंग प्रोसेस। अभी इस ऑक्शन को कैसे डिजाइन करना है, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, और ठीक है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बायर्स पे और सेलर्स पे नहीं, पूरी की पूरी सोसाइटी पे होगा। अगर गवर्नमेंट किसी चीज की ऑक्शन करने जा रही है तो गवर्नमेंट का ये खुद का माल नहीं है, ये सारा जो रिसोर्सेस हैं वो पब्लिक रिसोर्सेस हैं। अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई करप्शन होता है तो इसका नुकसान किसको होगा, सोसाइटी को होगा। तो इसीलिए जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस है, इन्होंने बोला कि हम ये जो प्राइस, नोबेल प्राइज दिया है ना, ये हमने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव्स को भी देखा यहाँ पे कि सोसाइटी का कितना बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल समझने होंगे कि जब भी कोई ऑक्शन को डिजाइन करना होता है। सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल है यहाँ पे रूल ऑफ ऑक्शन। या तो ये ओपन बिड हो सकता है कि ओपनली बोली लगेगी। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ मूवी नोन एज स्वर्ग, ठीक है, गोविंदा की मूवी थी, वहां पे आई थिंक राजेश खन्ना होता है उसमें, और उसका जो घर है वो बिक जाता है और उसकी ओपनली क्या होता है, बिडिंग होती है वहां पे, ठीक है। तो एक तो होगी ओपन बिडिंग, एक दूसरी होती है क्लोज बिड और सील्ड बिड, कि सभी क्या करेंगे, सपोज करो किसी की कोई प्रॉपर्टी है, वो है 100 करोड़ की, ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो अलग अलग जो बिडर्स हैं वो कोई 101 करोड़, कोई 110 करोड़, कोई 90 करोड़, कोई 80 करोड़, इस हिसाब से वो बिडिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जिसने मैक्सिमम बिडिंग की होगी उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बट ये किसमें होगा, क्लोज्ड और सील्ड जो बिड में होता है, ठीक है। कई बार हम मूवीज में देखते हैं ना कि पता चल जाता है कि उनको देयर वाज अ मूवी, आई एम अनएबल टू रिकॉल, तो वहाँ उसमें क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि इन्होंने कितना पैसा जो लगाया है, ठीक है। इसको मतलब इंट्रूजन भी बोलते हैं जो ट्रेडिंग में, इट इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक तो ये होगा कि ओपन बिड है और क्लोज्ड है और सील्ड है।
सेकंड है कि सिंगल बिड होगी और मल्टीपल बिड्स होगी। सिंगल बिड मतलब एक एक इन्होंने बिड डाल दी, मल्टीपल बिड मतलब कि एक बिडर मल्टीपल बिड्स डाल सकता है, ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा। एंड वेदर द बिड्स आर मेड वन आफ्टर अदर और एवरीवन बिड्स एट सेम टाइम, ठीक है, कि एक ने सपोज करो, जैसे आपने देखा होगा कि घर पे जो कमेटीज डाली जाती हैं उसमें क्या होता है, वन आफ्टर अदर होता है कि पहले एक बोली देता है, फिर दूसरा बंदा बोली देता है, फिर तीसरा देता है, चौथा, और लास्ट पे जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको वो कमेटी मिल जाती है, ठीक है। तो अलग अलग क्या होगा, सिस्टम होगा। ये सबसे पहले तो रूल समझने पड़ेंगे कि ऑक्शन के रूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा चेंज होता है। सेकंड है कि ये कमोडिटी और सर्विस पे भी डिपेंड करेगा। आई विल टेक अ क्वेश्चन इन द एंड, ठीक है। एंड सेकंड वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा कि हम किसी कमोडिटी की बात कर रहे हैं या किसी सर्विस की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम तो सभी को पता होता है कि जितने भी बिडर्स होते हैं ना उनको पता होता है कि हमने स्पेक्ट्रम कैसे यूज करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस स्पेक्ट्रम को किस में यूज करेंगे, वो टेलीकॉम सर्विसेज में यूज करेंगे, तो उनको पता होता है कि इसकी इतनी वैल्यू है, तो सभी को कॉमन वैल्यू पता होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन वैल्यू। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कॉमन वैल्यू क्या है, प्राइवेट वैल्यू क्या है, क्योंकि विल्सन और जो दूसरे इनके साथ हैं, ठीक है, इन दोनों को जो प्राइस मिला है ना वो एक को मिला है जो कॉमन वैल्यू के लिए, एक को मिला है कॉमन प्लस प्राइवेट वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये चीज समझनी यहाँ पे काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है कि मिलग्रॉम और विल्सन को किस चीज के लिए ये प्राइस मिला है, और ये चीज एग्जाम भी पूछ सकते हैं इन अ ट्रिकी वे, ठीक है। स्पेक्ट्रम वर्सेस, अभी देखो स्पेक्ट्रम की जो वैल्यू होगी ऑलमोस्ट सभी बिडर्स को पता होगा कि इसकी कितनी वैल्यू है, तो ठीक है, एंड उसके नियर अबाउट ही वो बिडिंग करेंगे। बट यहाँ पे एक तो ये होगी कि कॉमन वैल्यू होगी उसकी, एक होती है प्राइवेट वैल्यू और पर्सनल वैल्यू। जैसे कोई पेंटिंग है, अभी कोई पेंटिंग किसी के लिए वो चाहे 10 रुपए की ना हो और किसी के लिए वो 1 करोड़ तक की भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसकी पर्सनल क्या अटैचमेंट है उसके साथ, उसकी पर्सनल वैल्यू कितनी होगी उसके रिगार्डिंग, जब प्राइवेट वैल्यू वो कितनी असाइन कर रहा है उस पेंटिंग को, ठीक है। तो अगर पेंटिंग की ऑक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। इट वुड वी विल कंसीडर द कमोडिटी और सर्विस, ठीक है, ऑन द केस टू केस बेसिस। थर्ड वेरिएबल यहां पे क्या है, अनसर्टिनिटी। देखो जब कोई भी बिडिंग करता है वन कैन नॉट बी 100% सर्टन कि ये इतनी ही जाएगी या इतनी हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे बिडर को क्या लेनी चाहिए, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट और द वैल्यू अनदर जो बिडर है वो एसोसिएट करता है विद द ऑब्जेक्ट। अगर किसी बिडर को थोड़ा बहुत आइडिया है कि इस पेंटिंग के लिए ये बंदा 10 लाख दे सकता है, तो हो सकता है वो अपनी जो बिडिंग है वो 12 लाख तक की वहां पे कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। सो अभी ये प्राइस इनको क्यों मिला, विल्सन को प्राइस मिला फॉर द थ्योरी ऑफ ऑक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली ऑक्शन किसकी करनी है, ऑब्जेक्ट की करनी है। थ्योरी फॉर ऑक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द कॉमन वैल्यू, तो इसका फोकस था कॉमन वैल्यू पे, ठीक है, कि जहां पे जो बिडर्स हैं वो उनको पता है कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये वैल्यू भी काफी क्या होती है, अनसर्टन होती है बिफोर हैंड, बट इन द एंड इट इज द सेम फॉर एवरीवन, कि बाद में सभी को ये चीज पता जो वैल्यू है, ठीक है। अगर स्पेक्ट्रम बिका है 100 करोड़ में तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यूज रहेगी ये ऑलमोस्ट सेम रहेगी सबके लिए, ठीक है। तो विल्सन यहाँ पे एक चीज और शो भी कर रहा है, वो कर रहा है विनर्स कर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। देखो विनर्स कर्स क्या होता है, सपोज करो कोई कमोडिटी है उसकी वैल्यू है आपने मतलब एज सच आपने कोई पेंटिंग देखी, आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यू 100 हो सकती है,
बट आपने डर के मारे में कि ये निकल ना जाए हाथ में से, तो आपने इसकी वैल्यू 150 लगा दी, तो बट उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 75 रुपीज। यहां पे विनर्स कर्स कैसे हो गया? देखो, आप हो तो विनर कि आपको वो चीज मिल गई, बट अभी आप फिर भी क्या हो, लॉस में हो, इसीलिए वो आपके लिए क्या बन गया, एक कर्स बन गया। ठीक है, कि सपोज करो कि इट इज उसने बोला विल्सन ने कि ही शोड दैट व्हाट द विनर्स कर्स इज एन, किसी ऑक्शन में विनर्स कर्स क्या होता है और ये किस तरह अफेक्ट करता है बिडिंग को। ही सेड इट इज पॉसिबल फॉर अ बिडर टू ओवरबिड, कि $50 की कोई चीज थी और उसने वैल्यू तो लगा दी $50, बट अभी उसका जो रियल वैल्यू है वो कितनी है, $25। देयर वाज अ मूवी स्वर्ग, नो स्वर्ग नहीं थी, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, ये भी आई थिंक यस गोविंदा की मूवी थी ये भी। तो यहाँ पे शक्ति कपूर उसके क्या होते हैं, फादर होते हैं, और ये भी बिडिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे गुलशन ग्रोवर, यस गुलशन ग्रोवर क्या करता है, बिडिंग करता है, बट वो इतनी ज्यादा बिडिंग कर देता है इन हिज ईगो, तो शक्ति कुमार उसको बोलता है कि बेटा कि ये चीज तुमने खरीद तो ली, बट अगर इसको तुम मैक्सिमम इसको होटल बना के कुछ करके कैसे भी बेचोगे ना, फिर भी तुम्हें कम से कम 50 लाख का नुकसान होगा। तो ये क्या है, विनर्स कर्स है, कि उसको वो प्रॉपर्टी तो मिल गई, बट अभी फिर भी जितना मर्जी उस पर डेवलपमेंट कर ले, जितना मर्जी कुछ कर ले, फाइनली उसको क्या होगा, यहाँ पे नुकसान ही होगा। दैट वन विंस द ऑक्शन बट लूजेस आउट इन द रियलिटी। ठीक है, तो ये चीज जो विल्सन ने कही। अभी मिलग्राम को क्यों मिला, उसने इंक्लूड किया नॉट जस्ट द कॉमन वैल्यू, ठीक है, उसने अपना जो फॉर्मेट बनाया, बट आल्सो द प्राइवेट वैल्यूज। ठीक है, जो प्राइवेट वैल्यू है और ये वेरी करती है फ्रॉम बिडर टू बिडर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक पेंटिंग के लिए कोई बंदा 50,000 खर्च सकता है, कोई उसकी वैल्यू 10 लाख तक भी लगा सकता है प्राइवेट वैल्यू, तो ये टोटली क्या करेगी, वेरी करेगी। बट इसके लिए भी उसने अच्छा एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया। ही एनालाइज द बिडिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है, इन अ नंबर ऑफ वेल नोन ऑक्शन फॉर्मेट्स। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मेट थे ऑक्शन के, वहां पे उसने एनालाइज किया कि यहाँ पे बिडिंग किस स्ट्रेटेजी से होती है, एंड ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ फॉर्मेट विल गिव सेलर हायर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। ठीक है, ऑब्वियसली जब किसी बिडर को उस चीज के बारे में अच्छे से पता होगा, तो उसको पता है कि इसकी इतनी वैल्यू हो सकती है, इसका इतना मेरे को बेनिफिट हो सकता है, तो जो विनर्स कर्स है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मिलग्राम और विल्सन को क्या मिला, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो ये लास्ट आर्टिकल है अभी आज के लिए, अ कंसर्टेड अटैक ऑन आरटीआई। तो यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा गया है, इसमें बोला गया दैट राइट टू इंफॉर्मेशन has been upheld by the Supreme Court as a fundamental right under Article 19 of the Indian Constitution। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर हमारे पास क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है, हमारे पास राइट टू क्या है, नो भी है। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो केसेस हमने डिस्कस किए थे लेक्चर्स में, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देयर शुड बी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल वन हमने केस डिस्कस किया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो राइट टू वोट है वो हमारा क्या है, जब कोई कास्ट करता है बैलेट को, तो वो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये चीजें हमने सारी डिस्कस की थी, तो यही चीजें यहाँ पे इसने डिस्कस की है दैट विदाउट एक्सेस टू रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पीपल्स एबिलिटी टू फॉर्मुलेट ओपिनियन
and expressed meaningfully is curtailed. सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोली थी कि जब तक किसी कैंडिडेट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी वोटर्स के पास कि उसकी क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या उसके एसेट्स हैं, कितने पेंडिंग केसेस हैं, किस केस में उसकी कन्विक्शन हुई है, ठीक है, तो इन सब चीजों के बिना एक वोटर किसी कैंडिडेट को वोट नहीं डाल सकता। एंड एक नोटा का ऑप्शन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वाला जो केस था उसमें भी, ठीक है, कि नोटा का जो ऑप्शन है नन ऑफ द अबव ऑप्शन, इसको भी ऐड किया गया था। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि आरटीआई एक्ट एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। अभी ये न्यूज में क्यों था, इसने आर्टिकल क्यों लिखा, क्योंकि इस साल 2020 में जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसको 15 साल हो गए इसकी इनेक्टमेंट को हुए। बट और इसका पोटेंशियल क्या है, ठीक है, इसका मतलब एवरी ईयर अबाउट 6 मिलियन और 60 लाख एप्लीकेशन फाइल होती हैं अंडर आरटीआई एक्ट, and making it the most extensively used transparency legislation, क्योंकि इससे क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, और ये क्या है, एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। तो सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला क्या है, एक्ट है, अबाउट 60 लाख हर साल क्या आती है, एप्लीकेशंस आती हैं। एंड जो नेशनल असेसमेंट इसमें शो की गई है, तो उसमें ये चीज भी बोला गया है कि जो पूरेस्ट सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वो इसको अभी इसके पोटेंशियल को समझना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि ये किस वे से उनको एम्पावर कर सकता है, ठीक है, उनके बेसिक राइट्स और एंटाइटलमेंट्स को कैसे इन्फोर्स कर सकता है, ठीक है, या फिर इफेक्टिव ग्रीवांस रीड्रेसल मैकेनिज्म कैसे प्रोवाइड कर सकता है। तो उस वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। बट ये भी चीज बोली गई इस आर्टिकल में कि ड्यूरिंग कोविड-19 जो क्राइसिस है, इसमें भी इस एक्ट को काफी ज्यादा यूज किया गया है। किसके लिए, टू चेक द मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ अ हॉस्पिटल्स, फॉर एग्जांपल किस हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर्स हैं, उसमें आईसीयू बेड कितने हैं, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कैसे अकाउंटेबल रखना है इन द डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स, कि किसके पास कितने फूड ग्रेन आए और कितना डिलीवर किया है, एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट किस किस को मिले हैं, किस किस को नहीं मिले, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स को क्या क्या मिला है, ये सारा कुछ आरटीआई के अंडर वो सारा फाइंड आउट करते हैं। तो आरटीआई एक्ट क्या है, यूज किया जाता है बाय द पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स। बहुत बार वो लोग ऐसे भी हैं जो एज ए विसल ब्लोअर या पब्लिक स्पिरिटेड जो सिटीजन होके काम करते हैं। फॉर एग्जांपल के पीछे जो पीएम केयर्स फंड है, ठीक है, जिसमें कोरोना के जो हेल्प के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट की हेल्प के लिए कोरोना पेंडेमिक के दौरान इसमें बहुत सारी फंडिंग आई, तो यहाँ पे भी आरटीआई डाली गई थी कि बताओ कि इसमें कितना फंड है, ठीक है। वो अलग चीज है कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, भी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे फंड आ रहा है और कैसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। देयर सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है, इन आरटीआई, स्पेशली सेक्शन 8 of RTI Act. We will discuss thoroughly the RTI Act of 2005 in our lecture series. ठीक है, तो कैसे आर्बिट्रेरी अब्यूज हो रहा है पावर का बाय द स्टेट, ठीक है, तो आरटीआई को यूज करके बहुत सारे करप्शन पे और आर्बिट्रेरी जो अब्यूज हो रहा है, ठीक है, पावर का, उसको काफी ज्यादा कर्टेल किया गया है। एंड पीपल हैव यूज्ड टू क्वेश्चन इवन टू द हाईएस्ट ऑफिसेस। ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है या बाकी के ऑफिसेस हैं, वहां पे भी बहुत सारी आरटीआई जाती हैं, इंफॉर्मेशन सीख करती हैं वहां पे, ठीक है। एंड इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। आरटीआई एक्ट गेव राइट टू एक्सेस गवर्नमेंट फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स टू अराउंड 1.3 बिलियन, ठीक है, पीपल। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, दैट लॉ हैज पोटेंशियली क्रिएटेड 1 लाख अबाउट 1.3 बिलियन विसल ब्लोअर्स एंड ऑडिटर्स, कि आरटीआई को यूज करके
हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है इस कंट्री की वो ऑडिट करते हैं। विसल ब्लोअर समझते हो, जो किसी भी अगर सपोज करो देयर इज करप्शन गोइंग ऑन, ठीक है, और कोई ऑफिसर इस करप्शन को एक्सपोज कर दे तो हम उसको क्या बोलते हैं, विसल ब्लोअर बोलते हैं, ठीक है। एंड इट हैज एम्पावर्ड सिटीजन्स टू क्वेश्चन दैट दोज हु गवर्न एंड होल्ड देम अकाउंट, कि उनको क्वेश्चन करते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ थ्रू आरटीआई, और उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी एस्टेब्लिश करते हैं, मेंटेन करते हैं। एंड कंसिस्टेंट अटेम्प्ट्स बाय द गवर्नमेंट, बट अभी यहाँ पे इशू क्या है, इस आर्टिकल में ये चीज बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है इसने डेनिग्रेट और डीजनरेट कर दिया इस लॉ को। कैसे? बाय टिल्टिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कैसे? देखो अभी एक चीज इन्होंने क्या किया 2019 में, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ रिग्रेसिव अमेंडमेंट्स लेके आए। एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रिग्रेसिव, बैकवर्ड, ठीक है। इसमें क्या रिग्रेसिव अमेंडमेंट क्या थी, एक तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था इसको हम ट्रीट करते होते थे एज एट द सेम फुटिंग ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटस है, सुप्रीम कोर्ट के जज का और इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन कमिश्नर है जो इंडिया के, उन दोनों का, ठीक है, इनका जो स्टेटस था हम इक्वल मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इक्वली दिया हुआ है। और सीआईसी को पहले जो वर्डिंग यूज की गई थी वो क्या थी कि सीआईसी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 324 के अंदर इनको एस्टेब्लिश किया जाता है, और इनको जो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक ये सारे सुप्रीम कोर्ट के साथ डील करते हैं। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं थी, ये कौन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मींस कि ये किसी एक्ट ने एस्टेब्लिश किया है। कौन सा एक्ट? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में। बट 2019 में क्या हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट ने इनका जो स्टेटस था वो चेंज कर दिया, इनका स्टेटस कम कर दिया, ठीक है। अभी ये इक्विवेलेंट नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि इनका अभी कोई फिक्स्ड टेन्योर भी नहीं है। पहले इनका क्या था, फिक्स्ड टेन्योर था, बट इस चीज को बहुत ज्यादा क्या ऑपोजिशन मिली विद इन द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, क्योंकि गवर्नमेंट, बट फिर भी गवर्नमेंट पुश्ड द आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट विच अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिटरमाइन द टेन्योर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के क्या टेन्योर होगा और उनकी सैलरीज कितनी होगी। तो ये क्या है, इट जस्ट सिग्नल्ड दैट डायरेक्शन टू डिस्क्लोज इनकन्वीनियंट इंफॉर्मेशन। देखो चीफ जो हमारी जो इंफॉर्मेशन जो कमीशन है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे स्पेशली टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ऐसा इसने नहीं पूछे थे, बहुत सारी आरटीआई फाइल की थी, बट जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इसने फेवर किया था पॉलिटिकल पार्टीज, जो उनको बोला गया पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर करो, ठीक है। तो सभी ये चीज बोल रहे हैं कि जब इनकन्वीनियंट इंफॉर्मेशन मांगी गई पॉलिटिकल पार्टीज से तो इन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, रिग्रेसिव अमेंडमेंट की 2005 एक्ट में। कौन कौन सी? एक तो इनका फिक्स टेन्योर बंद कर दिया और इनका जो हाई स्टेटस था उसको रिड्यूस कर दिया, प्लस इनके जो सैलरीज थी वो भी अपने कंट्रोल में ले ली। अभी सबसे बड़ा इशू क्या है, वैकेंसीज। अभी इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर्स है, अगर इनकी वैकेंसी होगी, देयर वुड बी लार्ज नंबर ऑफ बैकलॉग्स और पेंडिंग केसेस और कंप्लेंट्स, और इसमें बहुत ज्यादा क्या आएगा, डिले आएगा, क्योंकि इनके पास जब स्टाफ ही नहीं होगा, लीडरशिप जो लीडर्स ही अगर नहीं होंगे तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। सो सिंस मई 2014 जब से इलेक्शन हुआ है
मोदी गवर्नमेंट का, नॉट अ सिंगल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड विदाउट सिटीजन्स हैविंग टू अप्रोच कोर्ट, कि हर बार सिटीजन्स कोर्ट को अप्रोच करते हैं और उसके बाद ये CIC को अपॉइंट करते हैं। देयर आर 11 पोस्ट ऑफ कमिश्नर्स, और उसमें से 6 अभी क्या है, वैकेंट है, 6 तो वैकेंट है, इंक्लूडिंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो इनके चीफ हैं, वो भी क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, वो भी, ये पोस्ट भी अभी वैकेंट पे ही है, ठीक है। सो CIC इज हेडलेस, मतलब चीफ नहीं है, अभी अपॉइंट नहीं किया इन्होंने, फॉर द 5th टाइम इन लास्ट 6 years। तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी अभी क्या कर रही हैं, सेम स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। 8 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर, जो कमीशंस है, एक तो सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे है। स्टेट इंफॉर्मेशन जो कमीशंस हैं, दे आर फंक्शनिंग विदाउट अ चीफ। इनमें जो मेन जो चीफ जो कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट स्टेट लेवल, इसकी पोस्ट क्या पड़ी है, वेकेंट पड़ी है 8 स्टेट्स में। और त्रिपुरा और झारखंड का तो ऐसा केस है कि यहाँ पे कोई भी कमिश्नर नहीं है, ना तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और ना सिंपल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। तो जो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? सो इस आर्टिकल में बोला गया, द राइट टू क्वेश्चन इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी, दैट जब हम क्वेश्चन करते हैं, इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी, एंड एनी अटैक ऑन RTI लॉ which empowered the citizens to question those in power is an attack on our democratic republic। ठीक है, कि जब आप क्वेश्चन ही नहीं करने दोगे, इनको अपॉइंट नहीं करोगे, तो RTI का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा, बहुत सारी पेंडिंग्स होगी, एंड इट इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कि गवर्नमेंट चाहे तो जो भी इंपॉर्टेंट ये पोस्ट इसको वैकेंट क्यों रखा है, इसको फिल कर सकते हैं, एंड दे आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, सो नाउ इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज 3 आर्टिकल्स, then you can ask, and the remaining articles we will discuss on weekdays or in lectures or some or the other way. So don't even worry that this article was not covered. I did not cover the political articles which has least importance in our UPSC exam. I am covering the articles which are very important from our exam point of view, be it prelims, be it mains, or be it your interview. ठीक है, so there are many articles which are political in nature, which are, one such article in today's newspaper was written by the Hamid Ansari sir. He is the ex vice president of India. So he wrote about 2-state solution about Palestine and its issue with Israel. ठीक है, and but there was not much important in that article, so I skipped. That issue is important. Yes, 2-state solution for Palestine, ठीक है, and Jerusalem, that is important. That we will discuss in international relation also, and wait for 3-4 more days. There would be more important articles on Palestine, on Jerusalem, or Israel's dealing with the Jerusalem or Palestine. Then we will discuss the brief history and what is written in the article and what is the way forward. So if you have any doubt, then you can clarify. I hope you all are here. ओपन बिड होती है जिसमें आप बिडिंग कर रहे हो, सारे जाने बैठे हैं, अगर बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो कि बोली लगा रहे हो कि इसका पैसा 5 लाख, कोई बोल रहा है कि मैं 6 लाख दे रहा हूं, कोई बोल रहा है, ओपनली डिस्कशन हो रही है भी कितने पैसे देने हैं। क्लोज बिड में क्या होता है? क्लोज बिड में ये है कि आप
अपना जो पैसा है, जितना आपने अमाउंट लगानी है किसी कॉमोडिटी के ऊपर, आप उसको लिख के सबमिट कर दोगे, तो वो जो ऑफिशियल्स हैं वो सभी को देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसने बिडिंग की है और उस पर्सन को मिल जाएगा। राइट? ओके, एनी अदर डाउट?